Good morning, all of you. Good morning, ma'am. So here I am back with our second part of our third chapter, that is the ruling the countryside. Till here we have read about the three types of revenue system, that is permanent, Malwari and Roitwari system. It's all clear about you? Any doubt? Shall we continue this chapter? Okay. Now the crops for Europe. So our next point is crops for Europe. For British countryside, India not only yielded revenue but also grow crops they require. हमसे वो रेवेन्यू ही नहीं कलेक्ट किया करते थे, बल्कि हम इंडियंस उसके लिए उनकी मनचाही क्रॉप्स भी ग्रो किया करते थे. अब बात आती है मनचाही क्रॉप क्या होता है. मनचाही क्रॉप क्या होता है भाई? उनके लिए क्रॉप ग्रो करना जो वो चाहते थे. इसका मतलब, हाँ राजवीर, हाँ, मतलब उनकी रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग, उनके नीड के अकॉर्डिंग कल्टीवेटर्स उनके लिए क्रॉप ग्रो किया करते थे. किनके लिए? यूरोप के लिए. किसके लिए? यूरोप के लिए. They expanded the cultivation of opium and indigo by the late 18th century. This is a type of crop, opium and indigo, which the Indian people grow. They also forced farmers to grow their other crops. They include jute. बंगाल में उन्होंने बोला हमारे लिए जूट ग्रो करिए. असम में उन्होंने बोला टी. यूपी यूनाइटेड प्रोविंसेस में क्या बोला? शुगर के. पंजाब में व्हीट एंड कॉटन. महाराष्ट्र में, पंजाब में राइस मद्रास. So these are the some other crops which are grown by the Indian farmers for the Europeans. British used a variety of method to expand the cultivation of crops that they needed. Which is the dominant color? बताइए कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है? This was ज्यादा अट्रैक्टिव है ना, मॉरिस कॉटन प्रिंट. Which of the dominant color in the following feature? कलमकारी और दिस वन कलमकारी. इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं. If your answer is blue, you are correct. Blue is commonly called as indigo. ब्लू कलर को क्या बोला जाता है? इंडिगो. हाउ इज इंडिगो कलर प्रोड्यूस? इंडिगो कैसे प्रोड्यूस होता है? ब्लू कलर देखा है ना हमारे व्हाइट क्लॉथ पे, जो हम ब्लू लगाते हैं, नीली, देखा है वो कलर? एग्जैक्टली दैट इज द इंडिगो. Indigo color is produced from a plant called indigo cultivated in India. We are talking about the plant whose name is indigo. India was biggest supplier of indigo in the world during the colonial period. At the time of the colonization, India was only the country who supplied indigo, or we can say India is the largest producer of indigo. ये देखिए, ये अभी भी उगता है. देखिए ये हमारा इंडिगो क्रॉप है जो हमारे इंडिया में ग्रो होता है. आंध्र प्रदेश, बंगाल, ये हम पढ़ते हैं ना कहाँ कहाँ ग्रो होता है. देखिए, the blues indigo fact takes about 80 days to grow. How much time it takes? 80 days to grow to a height of 4 feet. क्या हाइट होती है इस प्लांट की? 4 feet. Keeping a few inches, the rest of the plant is harvested. Harvested plant is soaked in bucket, overtained with bricks and left overnight. The water which turns blue is whipped till the dye settle at the bottom. The dye is then separated from the water and then dried to the cakes. आपकी बुक में के अंदर भी दे रखा है कि प्लांट को काट के उसको पानी के अंदर डिप कर दिया जाता है, उसको ओवरनाइट सोक किया जाता है. उसके बाद जब प्लांट नीचे बैठ जाता है, उसका रेसिड्यू लेफ्ट ओवर नीचे बैठ जाता है,
ऊपर का पानी निकाल दिया जाता है, फिर जो नीचे बच जाता है उसको सोक किया जाता है, वो टोटली ब्लू कलर का हो जाता है, उसको ड्राई करके उसके केक में पीसेस काट ली जाते हैं, मतलब उसके पीसेस काट लिए जाते हैं, इस तरह से नील बनती है, इंडिगो कलर बनता है। ये कहाँ कहाँ ग्रो होता है देखिए, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, आसाम, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड द नेबरहुड ऑफ बांग्लादेश। कहाँ कहाँ ग्रो होता है ये? उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, आसाम, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड द सम पार्ट ऑफ बांग्लादेश। राइट, ये बहुत अच्छे से याद कर लेना। How was indigo produced? The indigo villages were usually around indigo factories owned by the planters. After harvest, the indigo plant was taken to the vats in the indigo factory. 3 or 4 vats were needed to manufacture the dye. Each vat had a separation function. The least strip of the indigo plant of the first soaked in the warm water in the vat known as the fermenting or the steeper vat. फर्मेंटेशन का होता है ना, उसके अंदर इसको डाल के बॉईल किया जाता है, सोक किया जाता है गर्म पानी के अंदर, ज्यादा पानी गर्म भी नहीं, ल्यूक वार्म वाटर के अंदर। When the plants fermented, the liquid began to boil and the bubble. Now the rotten leaves were taken out and the liquid drained into the another vat that was placed just before the first vat. Clear है ये? It is a method how we produce the indigo. It is a method, right? And the second vat known as the beater vat. This solution was continuously stirred and beaten with paddles. वो सोल्यूशन निकाल के दूसरे वेट में डाल दिया जाता है, वहां पे इसको कंटिन्यूसली स्टीयर किया जाता है, हिलाया जाता है। When the liquid gradually turn green and then blue, पहले जो लिक्विड उसको बॉईल किया जाता है वो कौन सा कलर आता है उसका? पहले ग्रीन, और ज्यादा जब हम उसको ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं तो वो ग्रीन कलर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू में। लाइम वाटर वॉज एडेड, क्या ऐड करते हैं इसमें? लाइम वाटर, उससे उसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू। Gradually the indigo separated out in the flax or muddy sediments settled to be the bottom of the vat and the clear liquid rose to the surface. ऊपर तो साफ पानी आ जाता है और नीचे नीचे सरफेस पे इंडिगो कलेक्ट हो जाता है, वो ब्लू कलर वाला। द लिक्विड वॉज ड्रेन, लिक्विड बाहर निकाल दिया जाता है। द इंडिगो पल्प वॉज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर वेट, अब जो पल्प नीचे बच गया है उसको दूसरे वेट में निकाल लेते हैं, नोन एज द सेटिंग वेट एंड देन प्रेस एंड ड्राई फॉर सेल। उसको प्रेस किया जाता है, प्रेस करने से उसका सारा पानी निकल जाता है और वो अब मार्केट में सेल करने के लिए रेडी है। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? हाउ वॉज इंडिगो प्रोड्यूस? देख लीजिए इसका पिक्चर, ये अलग अलग वैट है, देखिए यहाँ पे इसका ग्रीन कलर है, ये अलग अलग सेक्शन के वैट है। हाँ, आया समझ में? व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? हमारा इंडियन इंडिगो ही क्यों चाहिए उन्हें? क्योंकि हमारे इंडिगो का कलर नहीं निकलता वॉश होने पे भी, वो ड्राई होने पे फेडेड नहीं होता, कलर नहीं उड़ता है, बहुत फास्ट कलर है हमारे इंडिगो का, इसलिए हमारे इंडिगो की मार्केट में डिमांड ज्यादा है। पढ़ते हैं। The indigo plant grows primarily in the tropics. By the 13th century, Indian indigo was being used by the cloth manufacturer in Italy, France, and Britain to dye clothes. A small amount of Indian indigo reached European. पहले जो इंडिगो है वो इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के अंदर कपड़ों को डाई करने के लिए काम आता था अराउंड द 13th सेंचुरी के अंदर, है ना, वहां पे भी ग्रो होता था 13th सेंचुरी के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ का थोड़ा सा इंडिगो कहाँ पे पहुंचा? यूरोप के मार्केट में। कहाँ पहुंचा? यूरोप के मार्केट में, और वो जो बिका बहुत हाई प्राइसेस पे बिका, उसकी प्राइस बहुत हाई थी, वहां पे बहुत हाई प्राइसेस में ये बिका। So European cloth manufacture dependent on the what to the produce blue and the violent color. यूरोप में हमारे यहाँ जैसे इंडिगो के नाम से आता है ना कलर, वहां पे वॉट के नाम से आता है। किसके नाम से आता है? वॉट के नाम से, राइट। वहां पे ये वाला कलर कलर को डाई करने में काम आता था,
वायलेट कलर बनाने में भी यही कलर यूज में हुआ करता था। कहाँ पे? यूरोप की बात हम अभी तक कर रहे हैं। इट वॉज ग्रोन इन नदर्न इटली। कहाँ ग्रो होता था ये? इटली में, सदर्न फ्रांस में, और कुछ पार्ट जर्मनी और ब्रिटेन में। हाँ हाँ, कलर नेम है, ब्लू कलर का नाम है। हाँ, इट्स प्रोड्यूस वुड, प्लांट है जिससे ब्लू कलर निकलता है। हाँ, जैसे इंडिगो है ना हमारा, वैसे वुड है। It producers pressurized their government to ban import of indigo। तो उस वक्त जब हमारे यहाँ से थोड़ा सा इंडिगो गया था तो मार्केट में वहां बड़ी हलचल मच गई थी। ठीक है, इसलिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ से इंडिगो मंगाने के लिए मना कर दिया। क्यों? हमारे यहाँ से सस्ता जा रहा था, वहां पे ज्यादा महंगा बिक रहा था। तो यूरोपियन की गवर्नमेंट ने वहां मना कर दिया कि हम इंडिया से इंडिगो नहीं मंगाएंगे, हमारे यहाँ तो वोट चल रहा है, उसको ही चलने देंगे। देखिए उसके बाद, बट द क्लोथ डायर्स प्रिफर्ड इंडिगो। लेकिन यूरोप में जो मैन्युफैक्चर यूनिट्स थी, जो क्लोथ डाइंग यूनिट्स थी, उन्होंने किसकी डिमांड करी? इंडियन इंडिगो की। किसकी डिमांड करी? इंडियन इंडिगो की। फॉर इट्स रिच ब्लू कलर, क्योंकि हमारा जो कलर था उससे, इंडिगो था, उससे कौन सा कलर आता था? रिच ब्लू। रिच ब्लू का मतलब हो गया ब्राइट कलर, जो अच्छा लगता था, खिला हुआ कलर। मैप ऑफ द वर्ल्ड शोइंग द वोट कल्टीवेशन। देखिए वोट कल्टीवेशन कहाँ कहाँ हो रहा है? फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, राइट। यहाँ पे वोट ग्रो हो रहा था और हमारे इंडिया में इंडिगो ग्रो हो रहा था। ये देखिए, ये वोट है, ये इंडिगो नहीं है, ये वोट है जो फ्रांस, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन में ग्रो हो रहा था। WOAD, वोट। इसकी फ्लावर्स लाइट ग्रीनिश येलो कलर की आती है, ब्लूइश ग्रीन, ओवरलैड विद पाउडरी व्हाइट फ्लफ। ये देखिए इस तरह से ये वोट है। और जो पहले वाली मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी वो क्या है? इंडिगो। क्लियर हो गया? आ रहा है समझ में? Why the demand for Indian indigo? Driven by the pressure to lift ban on Indian indigo, they themselves started growing indigo in their colonies। ठीक है, गवर्नमेंट ने जब बैन कर दिया, लेकिन जो डायर्स थे वो इंडियन इंडिगो मांग रहे थे, तो यूरोपियंस ने क्या करा? इंडिगो ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। क्या करा इन्होंने? इंडिगो ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो वेयर दे हैव स्टार्टेड? फ्रांस, पोर्टुगल, इंग्लैंड, स्पेन, San Domingo, Brazil, Jamaica, and the Venezuela. Indigo plantation also came in the North America. With industrialization in England, demand for the indigo increase। इससे क्या हुआ? डिमांड जो थी इंडिगो की वो इंक्रीज होती चली गई, क्योंकि उससे कौन सा कलर आता था? रिच ब्लू कलर, जो बड़ा अच्छा लगता था। So the cloth dyes desperately look towards Indian indigo। लेकिन अभी भी जो क्लोथ डायर्स थे उनको कौन सा कलर चाहिए था? क्योंकि उनके इसका वो वाला कलर तो निकल जाता था वॉश होने पे, हमारा नहीं निकलता था, हमारा फेडेड नहीं होता था। With the rising demand for indigo, company thought of expanding indigo cultivation in India। अब क्या हुआ? जब इंडिया की इंडिगो की डिमांड यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ती जा रही थी, तो EIC ने क्या कहा कि ठीक है, हम इंडिगो कल्टीवेशन इंडिया में करना स्टार्ट करवाएंगे और लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन करवाएंगे। From the last decade of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and dominated the world market। 18th सेंचुरी में इंडिगो का डिमांड इतना ज्यादा बढ़ गया था, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी डिमांड बढ़ गई थी। In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India। और हमारे यहाँ से कितना परसेंट आता था? 30%। By 1810, the proportion land gone up to 95%। Seeing the prospect of the high income from indigo cultivation, many Scottish and English came to India and started indigo प्रोडक्शन। अब ब्रिटेन ही नहीं, स्कॉटिश ने भी हमारे यहाँ पे आना स्टार्ट कर दिया था इंडिगो के लिए। क्लियर है? आ गया समझ में? How was indigo cultivated? Methods of indigo cultivation. There are the two types to produce indigo। First one is niche। What was first one? Niche। And second one is royalty।
as we read about the Royd cultivation, Royd-Wari system. What was the Royd-Wari system? In which the EIC directly in contact with cultivators. मतलब निज में तो हमारे पास बीच में क्या होगा, एक मीडिएटर होगा होगा और रॉइट में कोई मीडिएटर नहीं होगा। रॉइट का मतलब क्या होता है? कल्टीवेटर। यस आर्यन, बीच का, जैसे जमींदारी थे, जमींदार थे, राजा थे, अब इसमें देखते हैं कौन सा मीडिएटर। आइए, निज सिस्टम क्या होता है? Niche was a system of indigo cultivation. Planters produce indigo in the land that is directly controlled by him. Planter कौन? Planter produce indigo in the land that is directly controlled by him. He either bought or rented the land from others. He produced indigo by employing hired labor. क्या मतलब हुआ इसका? ये मेरा लैंड है, ये मेरा लैंड। प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन द लैंड। प्लांट उगाने वाला प्लांटर, इसने क्या किया? यहाँ पे क्या ग्रो किया? इंडिगो। दैट इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय हिम। तो ये पूरा लैंड किसके कंट्रोल में है? प्लांटर। ही either bought और रेंटेड द लैंड फ्रॉम अदर। ये जो मेरा लैंड है, या तो ये मेरा खुद का हो सकता है या मैंने किसी से रेंट पे लेकर इसके ऊपर काम किया है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? होता है कि नहीं होता है? कि भाई मैंने किसी से लैंड, रेंट पे लैंड ले लिया और उसके ऊपर मैंने इंडिगो कल्टीवेट किया, या ये लैंड ही मेरा हो, कोई कंडीशन हो सकती है। ये दोनों कंडीशन आ गई। He produced indigo by employing hired labor. अब मैंने खुद ने तो इस पे काम नहीं किया, मैंने इसके लिए क्या किया? लेबर हायर कर ली। क्या करी मैंने? लेबर हायर कर ली। आई क्या समझ में बात? लैंड किसका था? प्लांटर का। प्लांटर के पास दो कंडीशन थी, या तो लैंड उसका खुद का खरीदा हुआ हो, मतलब उसका खुद का हो, या उसने किसी से रेंट पे ले रखा हो। अब उसने रेंट पे ले तो लिया, अब उसपे जो उसने इंडिगो कल्टीवेट करवाई है वो लेबर को हायर करके करवाई है। कंट्रोल अभी भी किसका होगा उस लैंड पे? प्लांटर का। आ गई बात समझ में? आ गई क्या? निज में प्लांटर का या तो खुद का लैंड होगा, खरीदा हुआ होगा, या वो रेंट पे लेगा और उस लैंड पे वो लेबर को हायर करके काम करवाएगा, इंडिगो ग्रो करवाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट? आगे के बाद समझ में निच की। लेकिन प्रॉब्लम आई निच कल्टीवेशन में। क्या आई? फर्टाइल लैंड वाज नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि इंडिगो को ग्रो कर देते हैं, अगर हम किसी लैंड पे इंडिगो एक बार ग्रो हो जाता है, 3 बार ग्रो हो जाता है, उसके बाद उस लैंड की फर्टिलिटी लूज हो जाती है, उसके ऊपर आप फिर अच्छे से इंडिगो ग्रो नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो बार बार जब इतना डिमांड में इंडिगो है तो क्या लैंड की फर्टिलिटी बनी रहेगी? क्या होगी? द लैंड विल लूजेस फर्टिलिटी। नाउ द फर्टाइल लैंड इज नॉट अवेलेबल। इतना डिमांड में है तो अब फर्टाइल लैंड ही अवेलेबल नहीं है। प्लांटर कुड नॉट गेट लार्ज एरियाज इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टीवेट इंडिगो इन प्लांटेशन। उनके पास इतना बड़ा लैंड भी अवेलेबल नहीं था कि वो इंडिगो एज ए प्लांटेशन ग्रो कर पाए। प्लांटेशन के लिए तो अच्छा लैंड चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं? तो वो भी उनके पास अवेलेबल नहीं था। दे ट्राइड लीज अदर लैंड्स बट इट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। ये दूसरों लोगों की जमीन को किराए पे ले लिया करते थे, लीज पे ले लिया करते थे, लेकिन उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते थे। हो सकता है लैंड ओनर वापस मांग ले, पॉसिबल है लीज पे ले ले तो। मोबिलाइजिंग लेबर एंड द बुलक कार्ट्स वर नॉट इजी। बार बार लेबर को हायर करना और बुलक कार्ट्स का अवेलेबिलिटी होना ये जरूरी नहीं था। प्लांटर बार बार कहां से लेबर को बुलाएगा काम करने के लिए? एक बार बुला लेगा, 2 बार बुला लेगा। जब लैंड की फर्टिलिटी भी खत्म हो गई है
तो अब उस लैंड पे ज्यादा मेहनत से काम करना पड़ेगा, तो उनके पास अब लेबर भी अवेलेबल नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो वेजेस उतना पे नहीं करते थे। वेजेस भी तो चाहिए, उनके पास इतना वेजेस भी नहीं था, बुलक कार्ड्स भी इजीली अवेलेबल नहीं होते थे, तो ये निज में इनको प्रॉब्लम आ रही थी। Labor was needed precisely at a time when the peasants were usually busy with their rice cultivation. राइस को ग्रो करने का और इंडिगो को ग्रो करने का टाइम पीरियड क्या था? सेम था। तो एक रीजन ये भी था कि इंडिगो ग्रो करो या राइस ग्रो करो। राइस तो उनको चाहिए क्योंकि वो उनका स्टेपल डाइट था बंगालीज का, उसके बिना वो कैसे सरवाइव करेंगे, वो तो उनको ग्रो करना ही रहता था, राइट। तो टाइम पीरियड सेम होता था, तो प्लांटर के पास लेबर इजीली अवेलेबल नहीं होता था, क्योंकि लेबर क्या ग्रो करने में लगी हुई होती थी उस वक्त? राइस। तो इंडिगो के लिए उनके पास लेबर अवेलेबल नहीं होती थी। क्लियर है? समझ आ गया? एक बार दोबारा बोलना है। क्लियर? नाउ द रॉयल्टी सिस्टम, हमने नीच पढ़ लिया, नीच क्लियर है, अब रॉयल्टी सिस्टम पढ़िए। अंडर रॉयल्टी प्लांटर्स फोर्स peasants to sign a contract and agreement। क्या हो रहा था यहाँ पे? प्लांटर के बीच में और पीजेंट्स के बीच में क्या हो रहा है यहाँ पर? एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या था वो एग्रीमेंट? विलेज हेडमैन हैड टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ रॉयल्स। कौन साइन करता था इस एग्रीमेंट पे? विलेज का हेडमैन। कौन साइन करता था? Those who sign contract got cash advance। किसको कैश मिलता था? हेडमैन को, विलेज हेडमैन। पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ। Those who signed contract got cash advance from the planters at low rate of interest to grow indigo। मान लीजिए, इसको हम थोड़ा ऐसे समझते हैं, किस किस के बीच में बात चल रही है? प्लांटर के बीच में और पीजेंट्स के बीच। प्लांटर पीजेंट से क्या करवाता है? एक एग्रीमेंट साइन करवाता। क्या करवाता है? एक एग्रीमेंट साइन करवाता है, राइट। उस एग्रीमेंट में साइन किसके होते हैं? विलेज हेडमैन। प्लांटर क्या करता है? विलेज हेडमैन को कैश एडवांस करता है। क्या देता है? कैश एडवांस देता है। क्या देता है? किस लिए देता है वो कैश एडवांस? Those who sign contract got cash advance from planter। प्लांटर हेडमैन को कैश एडवांस देता है at low rate of interest। इंटरेस्ट तो लेगा वो, क्या? इंटरेस्ट तो हेडमैन से वो लेगा, लेकिन लो रेट पे, लो इंटरेस्ट पे। टू ग्रो इंडिगो, टू ग्रो इंडिगो। आपने वो सुना है ठेके पे दे देना? कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर? अपनी लैंड दूसरे को दे देता है, पैसे दे देता है और उससे काम करवाता है कि भाई मैंने तो लैंड दे दिया, आपको तो मुझे प्रोडक्शन करके देना है। आ रही बात समझ में? तो सेम चीज यहाँ पर हो रही है। प्लांटर ने पीजेंट्स को पैसे दे दिए, लेकिन डायरेक्टली पीजेंट्स को नहीं दिए। जिसने एग्रीमेंट पे साइन किया है विलेज हेडमैन को, उसको पैसे दे दिए एडवांस में, और क्या कहा कि अब आप इस पे इंडिगो ग्रो करो। क्या करवाओ? इंडिगो ग्रो करवाओ। But loan committed the right to grow indigo on about 25% of his land holding। क्यों? क्योंकि इंडिगो ग्रो करने का और राइस ग्रो करने का एक टाइम पीरियड होता था, इसलिए क्या कहते थे ये कि हम आपके लिए लैंड तो ग्रो कर इंडिगो ग्रो तो कर देंगे, लेकिन कितने परसेंट लैंड पे? 25% ऑफ लैंड पे। देखिए, मेरे पास इतनी प्लॉट थी, ठीक है,
हमारे बीच में एग्रीमेंट साइन हो गया, मैं रेडी हो गई आपके लिए इंडिगो ग्रो करने के लिए। अब मेरे इस लैंड पे 25% लैंड पे मैं क्या करूंगी, इंडिगो ग्रो करूंगी। आ गया समझ में? और बाकी पे मेरा राइस ग्रो होगा क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है। अब द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड एंड ड्रिल, प्लांटर उनको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सारे मशीन इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करवा रहा है इस लैंड पे काम करने के लिए। रॉयड प्रिपेयर द सॉइल, सो सीड एंड लुक आफ्टर द क्रॉप। अब इस पे रॉयड्स क्या करेंगे, इस प्लांट को ग्रो करेंगे, इंडिगो को ग्रो करेंगे। सारी फैसिलिटी किसने दे दी, प्लांटर ने। सीड दे दिया, सारे इक्विपमेंट दे दिए, फर्टिलाइजर्स दे दिया, सब कुछ दे दिया कि भैया अब आपको इसका देखभाल करनी है और मेरे लिए क्या ग्रो करना है, इंडिगो। क्लियर हो गई बेटा ये बात? आ गया समझ में? निज में ऐसा कुछ भी नहीं था, रॉयट में है। रॉयट में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, निज में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता। सारा कंट्रोल निज के अंदर, निज के पास, प्लांटर के पास होता था। इसमें कंट्रोल किसके पास हो गया, हेडमैन के पास। हेडमैन को कैश एडवांस दिया जाता है काम करने के लिए, लेकिन ये 25% लैंड पे ही इंडिगो ग्रो करते हैं, बाकी पे ये राइस ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि राइस को और इंडिगो को ग्रो करने का टाइम पीरियड सेम है। क्लियर हो गई बेटा बात? प्रॉब्लम विद रॉयट, लेकिन रॉयट के साथ भी प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? वंस इंडिगो वाज हार्वेस्टेड अ न्यू लोन वाज गिवन टू द रॉयट। जब इंडिगो हार्वेस्ट हो जाता था तो रॉयट को दोबारा एक कैश एडवांस दोबारा दे दिया जाता था कि फिर आप दोबारा ग्रो करो। रॉयट फेल्ट द सिस्टम और हार्श एट द साइकिल ऑफ द लोन वाज नेवर एंडिंग। भाई बार बार आप हमें पैसे दे रहे हो, उसका हमें इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ रहा है आपको, तो एक तरह से हमारे लिए तो क्या हो गया, लोन हो गया। वो हम आपको बार बार कहां से चुकाएंगे। रॉयड्स गॉट वेरी लो प्राइस ऑफ देयर इंडिगो, वो इंडिगो ग्रो करके प्लांटर को दे दिया करते थे, लेकिन उसके लिए प्लांटर उनको बड़ा लो प्राइस देते थे। द प्लांटर चूज द बेस्ट सॉइल इन विच पीजन वांटेड कल्टीवेट राइस। अब प्लांटर क्या करता था, अपने इंडिगो को ग्रो करने के लिए वो बहुत अच्छा लैंड चूज करता था, और वो लैंड ऑलरेडी जो रॉयड्स हुआ करते थे, पीजन्स हुआ करते थे, वो अपने राइस के लिए ऑलरेडी चूज कर चुके थे। आफ्टर इंडिगो वॉज हार्वेस्टेड लैंड कुड नॉट सोन राइस एट इज लूज फर्टिलिटी। अब वो 25% लैंड पे ही क्यों इंडिगो ग्रो करते थे, क्यों? क्योंकि इस लैंड पे अगर इंडिगो ग्रो हो जाएगा तो वो राइस को नहीं ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि राइस को भी अच्छी फर्टिलिटी चाहिए होगी तभी राइस ग्रो हो पाएगा, और इंडिगो सारी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म कर देता था। आ रही बात समझ में बेटा? The Blue Rebellion and after. Fed up with oppressive royalty system, peasants decided not to accept the loan anymore. अब बहुत ऑपरेसिव कंडीशन पीजेंट्स के लिए अराइज हो गई थी। पीजेंट्स ने कहा नाउ नो मोर इंडिगो, ब्लू रेबेलियन स्टार्ट हो गया था। दिस लेड टू द क्लैश बिटवीन द प्लांटर एंड पीजेंट। इससे क्या हुआ, प्लांटर्स और पीजेंट्स के बीच में क्लैशेस स्टार्ट हो गए। व्हेन दे रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, उन्होंने इंडिगो ग्रो करने के लिए मना कर दिया। As rebellion spread, Roy refused to pay rents, attack indigo factories, armed with swords, spears, arrows and bows. Rebellion इतना ज्यादा फैल गया था कि रॉय सब कोई रेंट भी पे नहीं कर रहे थे। इंडिगो की जो फैक्ट्री सेटअप कर रखी थी ब्रिटिशर्स ने, वो भी सब खत्म कर दी थी। वुमेन टू केम आउट विद द किचन इम्प्लीमेंट्स। लोग लड़ाई करने के लिए वुमेन्स भी बाहर आ गई किचन के हथियार लेकर। प्लांटर्स बॉयकॉटेड, प्लांटर्स को बाहर कर दिया गया। गोमस्ताज वर बीटन अप। गोमस्ताज क्या होते हैं? गोमस्ताज जल्दी बताइए। एजेंट ऑफ, एजेंट ऑफ प्लांटर्स। क्या होते हैं गोमस्ताज? एजेंट ऑफ प्लांटर्स। In many areas, village headmen and the zamindars mobilized indigo peasants and the fought pitch battle with the lathias, because zamindars were also not happy with planters. अब इसमें zamindars भी इंक्लूड हो गए कि इन प्लांटर्स से हम भी हैप्पी नहीं है, तो प्लांटर्स ने भी लाठी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। प्लांटर्स भी करते हैं, प्लांटर्स कल्टीवेटर्स भी करते हैं। Did government support indigo rebellion?
मैम को बोल दो। The British government was worried about the possibility of another popular rebellion after 1857 revolt. Lieutenant Governor toured the troubled district in 1859. This was seen as sympathy toward indigo growers. Magistrate Ashley Eden issued a notice stating that the Royals would not be compelled to accept indigo contract. और मजिस्ट्रेट की तरफ से भी ये नोटिस आ गया था कि रॉयल्स के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं होगी इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की, जबरदस्ती नहीं चलेगी. Intellectual of the Calcutta visited Indigo districts and the wrote honor of Indigo system. The government set up Indigo Commission. The commission had planters guilty, asked Royals to refuse contract in future. After the rebellion, indigo production in Bengal collapsed and shifted to Bihar. But discovery of synthetic dye in the late 19th century. लेकिन अब क्या हुआ? लेट 19th century में क्या स्टार्ट हो गया? सिंथेटिक डाई. इंडिगो कल्टीवेशन बंद हो गया. अब क्या स्टार्ट हो गया? सिंथेटिक डाई. In 1970, the Mahatma Gandhi visited Champaran of Bihar to see the plight of indigo cultivators and demanded the government to look into this matter. लेकिन महात्मा गांधी ने देखा चंपारण में जाके कि जो वहां पर सबसे ज्यादा इंडिगो ग्रो करते थे उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी. तो उन्होंने इस बारे में गवर्नमेंट से बात करी और गवर्नमेंट को कहा कि इसके बारे में विचार किया जाए और वापस इंडिगो प्लांटेशन स्टार्ट हो. लॉर्ड टेन्योर सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया देख लीजिए एक बार. Rotwari settlement Madras, Malwari in northwest, Rotwari settlement in Bombay, Sepoy mutiny 1857, that is the revolt of 1857, Talukdari in Awadh, and permanent settlement in Bengal. Thank you. Chapter is over. Our third chapter is over. It's very interesting one. Hope you like it. Interesting or not? So in the next video we will do its question answer also. Till then, bye.